اسرائیل کا بیروت حملے میں سربراہ حزب اللہ حسن نصراللہ کو مارنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حسن نصراللہ بیروت میں 6 عمارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیروت میں گزشتہ روز بنکر بسٹر میزائل حملہ کیا گیا۔ فضائی حملوں کا ہدف حسن نصراللہ تھے۔ سربراہ حزب اللہ سے قریبی ذرائع کا گزشتہ روز سے رابطہ نہیں۔ حزب اللہ نے تاحال اسرائیلی فوج کے دعووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے حسن نصراللہ کی بیٹی زینب کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں 25 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کے دھمکی آمیز بیان کے بعد ایرانی سپریم لیڈر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ حزب اللہ سربراہ کی ہلاکت کی صورت میں متبادل قیادت تیار ہے۔ امریکی صدر نے فوج کو مشرق وسطی میں ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ جو بائیڈن نے پینٹاگون کو ہدایت کی ہے کہ خطے میں امریکی فورسز کی پوزیشن کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق تعیناتی کریں۔ سلامتی کونسل اجلاس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا ہے تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائرز نشانہ بنائے گئے جو اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ اسرائیلی فورسز کی رفح میں عارضی پناہ گاہوں پر بمباری، مزید 3 فلسطینی شہید۔ النصر کے علاقے میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,500 سے تجاوز کر گئی، 96,000 سے زائد زخمی۔ نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوٹل کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں لاکھوں شہری نکل آئے۔ اسپین کے 2 بڑے شہروں میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطین اور بیروت سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ کہا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فلسطین کو آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا بھی مطالبہ۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، BLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ ہم فتنہ خوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ جنوبی لبنان سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ جنگ سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل صرف سفارتکاری سے نکلے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلوئڈ کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رشتہ مضبوط ہے۔ پاکستان کو امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تشویش نہیں ہونی چاہیے۔
मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तमाई काविशों से शिकस्त दी गई। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बरादर दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार अदा किया। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम दरकार है। तमाम शोबाजात को हिस्सेदार बनाना ज़रूरी है। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेम वर्क पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी, जिसमें कहा गया पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रहना चाहिए। तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद ज़रूरी है। तवानाई की कीमतों से मुताल्लिक़ एडजस्टमेंट बर वक्त करें। पाकिस्तान महसूलात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे। तमाम शोबाजात की पैदावार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। PTI की रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर एहतजाज की तैयारी। वजीर आला KP की क़यादत में काफिला मंजिल की जानिब गामजन। अली अमीन गंडापुर कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। हर रुकावट उबूर करके रावलपिंडी जाएंगे। हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत जो कर सकती है कर ले, हम डरने वाले नहीं। दरियाई जहलम के तीनों पुल ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कतारें। मोटरवे M2 कलर कहार बिलकसर नीला दुल्हा इंटरचेंज बंद। पुलिस ने मरी रोड और अंदरून शहर से लियाकत बाग आने वाले रास्ते बंद कर दिए। मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। जो चीफ मिनिस्टर है वो पिंडी पे जलगार करने के लिए आना है। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? ट्रेनें लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? गंडापुर साहब AK-47 लहरा के आज बाहर निकलेंगे पिंडी में। लाउड एंड क्लियर कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रावलपिंडी पर यलगार का प्रोग्राम बनाया है। क्या कोई सियासी जमात असलहे के साथ जलसा करने आती है? किसी को असलहे के साथ रावलपिंडी में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हालात ख़राब हुए तो जिम्मेदारी वज़ीर आला पर होगी। पंजाब पुलिस को फसाद फैलाने वालों का इलाज करना आता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत पुलिस गर्दी ना करे। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत JIT का इजलास। JIT ने आइंदा इजलास में जबरान इलियास को तलब कर लिया। एलामिये में कहा जबरान इलियास प्रोपेगेंडा मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहा है। JIT ने अब तक 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन का गवर्नर KP के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का केस। पेशावर की मकामी अदालत ने फैसल करीम कुंडी को नोटिस जारी कर दिया। 29 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर KP ने TV शो में वज़ीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जिससे हमारी सियासी साख को नुकसान पहुँचा। मुआफ़ी मांगने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर मत्सुहिरो वादा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाक जापान बेहतरीन ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म और दो तरफ़ा तिजारती हुजम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलतों की बेहतरी में जापानी ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत और तवानाई में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। दोनों ममालिक इस्लामी अखुव्वत के लाजवाल रिश्ते से मुंसलिक हैं। सऊदी कायम मकाम कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं।
मुलाकात में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मजीद 170 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10 रुपए से 190 रुपए तक की कमी कर दी। तर्जुमान यूटिलिटी कॉरपोरेशन का कहना है नए कीमतों का इतलाक आज से होगा। चाय, मुख्तलिफ मसाले और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की गई है। तमाम शहरी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर सकते हैं। चार माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जिना हस्पताल कराची के डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स ने इंतजामिया और महकमा सेहत सिंध को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा अगर बुध तक तनख्वाहें जारी नहीं की गईं तो हस्पताल की सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगे। सिंध के इलाके रानीपुर से 2 लाख रुपए से जायद के जाली करेंसी नोटों की शिपमेंट पकड़ी गई। पुलिस का कहना है जाली करेंसी के पैकेट पेशावर से रानीपुर में मेडिकल स्टोर के एड्रेस पर बुक कराए गए थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरात में तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, ओकाड़ा, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुजरा शाह मुकीम, जड़ावाला, चूनिया, रेनाला खुर्द में भी बारिश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया गया। मेगा इवेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर किए जाएं, हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय और काम शुरू किया जाए। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल पैंथर्स और मार्कोर्स के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में बारिश की वजह से दूसरा एलिमिनेटर मंसूख हो गया। लीग मुकाबलों में 3 कामयाबियों की बदौलत मार्कोर्स को फाइनल में रसाई मिली। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी रंगीनियों के साथ जारी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के मौजू पर नौजवान तलबा और तालिबात ने थिएटर जुलूस पेश करके खूब दाद वसूल की। ड्रामा खत्म हुआ तो नौजवानों ने सांस संभाले और अपनी आवाज से समा बांध दिया।